شہر شموگا میں شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت ہر سال کی طرح اس بار بھی منایا گیا۔ یوم اقبال ادارہ ادب اسلامی ہند شاخ شموگا کے تحت قدوائی انگلش اسکول کے اقبال ہال میں منعقد ہوئی یوم اقبال کی یادگار تقریب۔ ہائی اسکول اور کالجوں کے منتخب طلباء نے دلکش دلچسپ طریقے سے کلام اقبال پیش کیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس خواب نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ 26 نومبر 2023 بروز اتوار شموگا میں یوم اقبال منایا گیا۔ محکمہ پی یو تعلیمات کے وظیفہ یاب پرنسپل محمد عابد اللہ اطہر کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کا موضوع تھا اقبال اور قرآن مجید۔ اس فکر انگیز اور انتہائی اہمیت کے حامل موضوع پر مجلس العلماء کرناٹک کے ریاستی کوآرڈینیٹر اسلامک اسکالر لئیق اللہ خان منصوری نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ علامہ اقبال کو ہم نہ صرف اسلامی شاعر کہیں گے بلکہ آپ کو ہم الہامی شاعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی جو شاعری ہے وہ الہامی شاعری ہے، اس کا اعتراف خود علامہ اقبال نے کیا ہے۔ اور ان کے جو ہم اثر ایک شاعر تھے گرامی جہانگیر صاحب، انہوں نے اپنا تاثر پیش کیا کہ علامہ اقبال پیغمبر نہیں تھے، لیکن ان کی جو شاعری ہے وہ پیغمبری کے خلاف ہے، یعنی ان کا جو پیغام ہے وہ قرآنی اشارات پر مبنی اور پیغمبری کے جو جواب کلیم ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، اسی انداز سے علامہ اقبال کی شاعری کی ہے۔ یہ بیان علامہ اقبال کے اس شعر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر مقامی ناصر خطیب، ادارہ ادب اسلامی شاخ شموگا کے نائب صدر ڈاکٹر ریاض محمود، سیکریٹری نعمان بیگ، اجلاس کے کنوینر محمد فاروق شمس اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر لئیق اللہ خان منصوری نے کہا کہ علامہ اقبال کی شاعری کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ علامہ اقبال گہرائی گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے والے اقبال سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ، آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب کون سی ہے، تو جواب تھا قرآن۔ لئیق اللہ خان منصوری نے اقبال کی شاعری میں قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے حوالے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سامعین کرام کو کافی قیمتی اور نایاب معلومات فراہم کیں۔ محمد عابد اللہ اطہر نے اپنی صدارتی تقریر میں دور حاضر کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمان نام کے مسلمان، زبان کے مسلمان، دکھاوے کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ اس وجہ سے مختلف مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ وہ شعر تو آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ لا الہ پڑھ کر مسلمان ہو جا رہے ہیں، مسلمان ہیں ہم سب، کلمہ گو ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کلمے کی تاثیر کتنی ہے؟ ہم دلوں کلمے کو دل میں بسا کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ بڑے شان سے لگا دیتے ہیں دیواروں پر۔
हमारा कलमा दिलों में नहीं है, दीवारों पर है। कलमा हमारा कहाँ है? दीवारों पर, दिलों में वो तासीर से नहीं है। तो जरूरत में कह भी दिया ला इलाहा, हमारी अकल ये कह रही है ज़बान से कि मैं मुसलमान हूँ, दिलों ने कहा मुसलमान नहीं, तो कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे अशआर हैं अल्लामा इकबाल के कलाम में है। इनका इतिहास था ये कहा कि आजा के बोलने देने की तकलीफ करना नामुमकिन है। इदारा अदब इस्लामी हिंद शाख शिमोगा की जानिब से आज का ये प्रोग्राम यौम इकबाल प्रोग्राम रखा गया। मैं यहाँ के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अहम मौजू पर अल्लामा इकबाल के पैगाम पर एक बड़ा अहम प्रोग्राम यहाँ पर रखा। मैंने आज अल्लामा इकबाल और कुरान के मौजू पर यहाँ पर गुफ्तगू की। अल्लामा इकबाल के कलाम की खूबी ये है कि वो कुरान की बुनियाद पर अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी की है। तो अल्लामा इकबाल का कुरान मजीद से कनेक्शन, अल्लामा इकबाल का कुरान मजीद से ताल्लुक़ कैसा रहा, इसी तरह आपने जो है अपनी फ़िक्र की जो तामीर कुरान की रोशनी में की, उसकी कुछ मिसालें कुरान मजीद उनके अशार से मैंने यहाँ पर पेश की। बिलखुसूस कुरान मजीद के मुख्तलिफ फ़िक्रों का इस्तेमाल करते हुए अल्लामा इकबाल ने जो है अपना पैगाम पेश किया है। इसी तरह कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों का खुलासा अपने कलाम में अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। फ़ारसी कलाम में तो बहुत सी मिसालें हैं, उर्दू की मिसालें मैंने यहाँ पर पेश की, जिसमें बिलखुसूस हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने उम्मत को कुरान से जो है जोड़ने की तरगीब, कुरान का पैगाम लेकर उठ खड़े होने की तलखीन अल्लामा इकबाल ने किया है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, ये मारूफ शेर है अल्लामा इकबाल का, जिसमें उन्होंने जो है उम्मत को जगाया है और याद दिलाया है कि उनकी कामयाबी और सरबुलंदी इसी कुरान से वाबस्तगी में है। इस कुरान को छोड़ने के नतीजे में हम आज ये जवाल और फिर ये पसमानदगी हम देख रहे हैं। तो कुरान फहमी के लिए अल्लामा इकबाल का जो कलाम है या उनका जो अदब है, उससे बहुत कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी, अल्लामा इकबाल ने यह कहा कि कुरान मजीद का मुताला इस तरह किया जाए कि वो गोया हम पर नाजिल हो रहा है। ये खुद उनके वालिद की जो है उनको तरबियत इस तरह हुई थी और उसका पैगाम अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। यानी आप ढेर सारी तफसीरें पढ़ लें, कोई तफसीर आपको जो है कुरान के जो है उस असल पैगाम से वाकिफ़ नहीं करा सकती जब तक आप इस कैफियत से कुरान नहीं पढ़ेंगे कि कुरान मजीद आपके लिए भी नाजिल हुआ है, कुरान का नुज़ूल हमारे ऊपर हो। तो वह एक बड़ा अहम पहलू अल्लामा इकबाल ने हमारी रहनुमाई उस जानिब की है। कोशिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी होती है कि शहर शिमोगा में तकरीबन 3 दहों से अदबी माहौल बहुत ही सरगर्म है, खुसूसन उर्दू अदबी माहौल जो है बहुत ही सरगर्म है। यहाँ पे कई अंजुमने और इदारे उर्दू की तरक्की, बक़ा और फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं और उसमें खुसूसन इदारा अदब इस्लामी जो है तकरीबन 15-20 सालों से मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम्स, अदबी प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक़िद करता रहा है और जिसमें खुसूसन हर साल यौम इकबाल मनाया जाता है, जिसमें अल्लामा इकबाल पर गुफ्तगू होती है, उनके पैगाम को नौजवानों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाती है और अदबी मुक़ाबले, सक़ाफ़ती मुक़ाबलों का इनेकाद होता है। तलबा व तालिबात के यहाँ पर मुक़ाबले होते हैं और खुसूसन तलबा में ये तरग़ीब दी जाती है कि अल्लामा इकबाल के कलाम को पढ़े, उनको समझे, उनकी तशरीह करे और इस तरह के मुक़ाबले होते हैं कि अल्लामा इकबाल के पैगाम को किस नौइयत से हम अल्लामा आवाम को पहुँचा सके, ये पूरी कोशिश की जाती है। आज की नौजवान नस्ल जो है शेर व अदब से दूर है, तो कैसे क्या कोशिश होनी चाहिए आपके? ये हमारी जानिब से हर हत्तल इम्कान यही कोशिश रहती है कि बच्चों में सक़ाफ़ती प्रोग्राम किए जाए। तमाम स्कूली सतह में प्रोग्राम्स करते हैं सक़ाफ़ती, जिसमें गज़ल सराई होती है, फ़िल्म तक़ारीर मुनक़िद होती हैं, तहरीरी मुक़ाबलों का इनेकाद होता है और इसी तरह जो है शेर व शायरी पर भी जो है बैतबाज़ी के भी प्रोग्राम्स हमारे यहाँ होते हैं ताकि बच्चों में वो सलाहियत, अदबी सलाहियत हो, बच्चों को अदब की तरफ राग़िब करने की पूरी कोशिश हो और ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि बच्चे उर्दू पढ़ें, उर्दू सीखें, उर्दू में बातचीत करें, उर्दू अदब से उनका ताल्लुक़ हो। और इसी तरह हम दूसरे इदारों की जानिब से भी जो है हर साल उर्दू सिखाने के प्रोग्राम्स भी हम करते हैं,
जो खुसूसन गर्मियों की छुट्टियों में जो तलबा कन्नड़ा और अंग्रेज़ी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, ऐसे तलबा के लिए उर्दू सिखाने का हम एक वर्कशॉप करते हैं जो तकरीबन 1 माह या 1.5 माह तक रहता है, ताकि बच्चे उर्दू की जो इब्तदाई मराहिल से गुजरे। इस तरह से प्रोग्राम हर साल मुसलसल चलता आ रहा है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं डॉक्टर रियाज महमूद हूँ। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ कुवैत यूनिवर्सिटी में, और मैं कई सालों से इदारा अदबी इस्लामी में बहैसियत कारकुन, बहैसियत नायब सदर काम कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं दूसरे अंजुमनों से, जैसे अंजुमन तकी उर्दू शाख शिमोगा से भी वाबस्ता हूँ, और तकरीबन 20 सालों से हम मुसलसल उर्दू की तरक्की, फ़रोग़ और उसकी बक़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर शिमोगा में अब हमें शिमोगा जफरुल्लाह शरीफ को बल्ला के यहाँ के प्रोग्राम यहाँ से मुल्कों में अच्छे चलते रहते हैं। इकबाल का प्रोग्राम है ना, यहाँ साल अच्छा चलता है, अच्छे आदमी भी जम को अच्छा उनकी तारीफ भी होती रहती, साल एक दिन भी ये मिस होते रहता। जरूर है कि हम अपनी जबान के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। हमारे जरूरत में कभी होते रहती है प्रोग्राम, कभी नहीं, कभी साल में 2 वक्त 3 वक्त इकबाल के प्रोग्राम में एक होता है, उसमें सब में भी आदमी मिलने को बातचीत करके पूरा प्रोग्राम क्या है सब करते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम कहाँ पर हुआ? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। आज इकबाल के बारे में, उनके जो दिन के इसमें क्या क्या करे थे, कुरान में क्या करे थे, किधर करे थे, बोले हमने भी अच्छा दिशा, कौन को भी अच्छा दिशा, पूरे अपना जमे थे परवाह नहीं, अच्छा है मुखान अपने लिए। जी बताइए। जी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छा रहता है। माशरे में एक क्या उसे बोलते हैं, एक तब्दीली आती है इससे। इंशाल्लाह बहुत कोशिश की ज़रूरत है, शुरुआत यहीं से समझ लीजिए, यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। तो वो शेर फहम या वो अदबी माहौल जो पहले देखने को मिलता था शिमोगा में, क्या वो आज भी है या इसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत है? उर्दू ज़बान अदब के हवाले है, फ़रोग़ कितना भी दिया जाए कम है, ऐसा है। अभी दिलचस्पी लाने की ज़रूरत है, अभी पहले से कम हो रहा है, ऐसा है। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है, उर्दू का ज़ौक़ उतना कम हुआ है, ना हो कि ज़्यादा। एवरेज आप अगर निकाल के देखेंगे तो ज़ौक़ कम हुआ है, ज़ौक़ बढ़ा नहीं है। बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़ौक़ बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद यासीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मेरा नाम सुरैया बेगम। मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ वुमन कटे साइंस कॉलेज भद्रावती में। तो आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए, कम से कम जो उर्दू से रग़बत रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और इस किस्म के प्रोग्राम करते रहने की वजह से क्या है, उर्दू की थोड़ी बहुत तो बेदारी हो जाएगी, मैं समझती हूँ। तो अल्लामा इकबाल की शायरी नौजवान नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जी हाँ, लिहाजा उनके मैसेजेस को, उनके पैगाम को नौजवानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। जी हाँ, ऐसे प्रोग्राम्स में ज़्यादातर आने चाहिए थे, ख़वातीन भी आने चाहिए थे, मर्द हज़रात और तादाद में आते तो बहुत अच्छा होता। कम से कम वो इन ख़यालात को आम करने में कामयाब हो जाते। इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़द करने चाहिए। अच्छा लगा ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करे, बयान भी बहुत अच्छा करे। और उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, उन्होंने बयान बहुत अच्छा करे और कुरान के बारे में सब अच्छा बोले ना, और अल्लामा इकबाल के बारे में भी बहुत अच्छा बोले। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कैसा है शिमोगा में माहौल? इस तरह के प्रोग्राम माशाल्लाह है। हाँ, प्रोग्राम होते रहते ना। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए, बच्चों में उर्दू पढ़ाने के लिए, उर्दू सिखाने के लिए ऐसी कोशिश होनी चाहिए। हाँ सही बात है, उर्दू सीखना है ना। क्यों सीखना है उर्दू ज़बान? उर्दू रहे तो अच्छा ना, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है उर्दू। इसलिए कि दीन समझ में आता है, दीनी मालूमात मिलती हैं उर्दू ज़बान सही बात के जरिए। तो इसके लिए उर्दू ज़बान सीखना चाहिए। हाँ, उर्दू ज़बान सीखना चाहिए। आज के माहौल में तो सब ज़बानें अभी समझना चाहिए, फिर भी उर्दू भी समझना चाहिए। दीन के मामले में तो फर्स्ट रहना चाहिए ना। अभी दीन सीखने के लिए तो अभी कितना, उसमें तो बहुत पीछे ही है, दीन के मामले में तो बहुत पीछे है, फिर भी है ना आगे बढ़ना चाहिए सब। यहाँ पर तकरीबन 6 स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के और 3 कॉलेजेस के और
डिग्री कॉलेज और PU कॉलेज के भी तालिबात ने हिस्सा लेकर कौन से मुकाबले थे? मुकाबले तहरीरी मुकाबले थे, इसके साथ साथ गज़ल सराय के मुकाबले थे। इन दोनों मुकाबलों में और नज़म सराय के मुकाबले में बच्चों ने उम्दा तौर पर हिस्सा लेकर इस महफिल को कामयाब किया। नहायत मशकूर ममनून है हमें इस प्रोग्राम की कामयाबी पर। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मुजाहिदुल्लाह खान है, मैं इसका कारकुन हूँ और मैं खिदमत करते हुए गुजर रहा हूँ। अंजुमन तरक्की उर्दू के साथ साथ अदब इस्लामी के साथ जुड़ा हूँ। इदारा अदब इस्लामी हिंद शाख शिमोगा जो क़ायम होकर शिमोगा में 15 साल बीत चुके हैं। जब से हमारी कोशिश यही है कि आवाम में ख़ुसूसन तलबा में इक़बाल शनासी, इक़बाल फ़हमी और जो है क़ौमी बेदारी ये पैदा हो। इस मुनासिबत से हम हर साल तलबा में सकाफ़ती मुकाबले कराते हैं और ऐसे मौज़ूआत रख कर तहरीर मुकाबले कराते हैं और तकरीरी मुकाबले कराते हैं जिससे उन्हें इक़बाल फ़हमी में, इक़बाल शनासी में आसानी हो और उनके मिजाज में कुछ न कुछ तब्दीली आए। तो इक़बाल के तालीमात का कुछ तो छाप उनकी शख्सियत पर करदा पर पड़े, हमारी ये कोशिश रहती है। अल्लाह का फजल है कि हमारे प्रोग्राम हर साल कामयाबी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बार का प्रोग्राम भी अल्लाह के फजल से अच्छा कामयाब हुआ है और हर साल हम नए नए मौज़ूआत पर जो है मुख़्तलिफ़ को बुलाते हैं और नई नई बातें अल्लामा इक़बाल के कलाम की मुनासिबत से आवाम के सामने पेश करते हैं। बिलखुसूस रमज़ान के महीने में कुरान के ताल्लुक़ से हमारा एक मख़सूस प्रोग्राम रहता है, जैसे तमसीलात कुरान, तदवीर कुरान, तदवीर अहादीस। तो इस तरह के जो कठिन मौज़ूआत हैं, ऐसे मौज़ूआत पर जब इदारे अदब इस्लामी हिंद के जानिब से हम प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं, अल्लाह के वजह से कामयाब प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते आए हैं। मैं समझता हूँ रियासत कर्नाटक में शिमोगा ज़िला ही शायद मेरी नज़र में ऐसा ज़िला है जहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और इदारे अदब इस्लामी बैक वक्त दोनों फ़ाल इदारे और दोनों अदारों में वही चेहरे वही अफराद। तो ये एक इसकी एक ख़ास नौइयत और ख़ास खूबी है। वही अफराद स्टेज पर भी वही, वहाँ भी वही रहते हैं और यहाँ भी वही रहते हैं और लोगों को कोई बदगुमानी भी नहीं है, इससे कोई बज़्ज़ भी नहीं है, बल्कि हमारी जो है ये अलग अलग बैक व खिदमत से यहाँ का तबका भी खुश है। क्या वही लोग हैं या नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं? नए नए लोग भी जुड़ रहे हैं जो अब हम जो कोशिश भी करते हैं और खुशी से आने वाले भी हैं। इंशाअल्लाह मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते ही है, कारवां बढ़ता गया वाली कैफियत हो रही है। नए नए अफराद हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी मेहनतों को और फिर हमारी कोशिश को देख कर वो करीब आ रहे हैं। पहले तो मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप यहाँ पे? पहले तो साहिल के तमाशाई थे अफराद यहाँ के, लेकिन अब हर तरह से माली तौन भी करते हैं, वक्ती कुर्बानी भी देते हैं, हर तरह का साथ देते हैं। तो ज़बान और अदब को फ़रोग़ देना चाहते हैं? ज़बान और अदब के मामले में शिमोगा में जो है ख़ासकर बहुत अच्छा अदबी माहौल है। यहाँ पर कई मुस्लिम अदारे हैं और फिर जो तकरीबन 800,000 तलबा SSLC PU से और डिग्री में उर्दू पढ़ने के तलबा यहाँ पर। तो इस मुनासिबत से जो है अदबी महफिल में यहाँ पर कामयाब होते हैं, अदबी माहौल भी है, लोग अदब से वाक़िफ़ भी रखते हैं यहाँ पर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دین کے رہے پر سرور عالم دین کے رہے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پیغمبر نور مجسم رب کے پیغمبر نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے رہبر نور مشیت نور ہدایت نور یقین و نور صداقت نور کے پیکر محسن آدم نور کے پیکر محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا پر آپ کا احسان راحت جہاں ہے آپ کا دامن آپ کا ہر ایک حکم مقدم آپ کا ہر ایک حکم مقدم صلی اللہ علیہ وسلم صبر و رضا ہے آپ کا صدقہ صدق و صفا ہے آپ کا منشا ضامن بخشش عزم مسمم ضامن بخشش عزم مسمم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 9 نومبر کو یا نومبر کے مہینے میں بیشتر یوم اردو اور یوم اقبال منایا جاتا ہے. زیادہ تر شہروں میں یوم اردو منایا جاتا ہے یا یوم اقبال، پر شہر شموگا کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں دونوں منائے جاتے ہیں. تو یوم اردو کا انعقاد انجمن ترقی اردو کی جانب سے ہوتا ہے، جو ایک زبانی و لسانی ترقی کا ادارہ ہے، اور یوم اقبال کا انعقاد ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے ہوتا ہے، جو ادب اور اسلامی فکر کو فروغ کا کام کرتا ہے. ادارہ ادب اسلامی شموگا ہر مہینہ شعری نشست یا نثری نشست رکھتی ہے. شعری نشست میں طرحی مشاعرہ یا غیر طرحی مشاعرہ کا انعقاد ہوتا ہے، اور نثری نشست میں باقاعدہ درس اقبال کا اہتمام کیا جاتا ہے. ادارہ حاضہ کی روایت کے مطابق آج یوم اقبال منایا جا رہا ہے. حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک دانائے راز، حکیم الامت، آفاقی شاعر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مغرب سے نعت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور مشرق میں علامہ کہلانے کے قابل بھی ہوتے ہیں. تاہم سر علامہ ڈاکٹر اقبال کے علاوہ یہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا نام سر اور علامہ دونوں سے شروع ہوتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا خطاب بھی ہوا۔ آپ کو یہ تمام اعزازات اور پذیرائی اس درد و دل کی بدولت نصیب ہوئی جو آپ اپنی قوم کے لیے رکھتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں ہمارے نوجوان نسل کو دنیا کی امامت کی راہ پر لانے کی بات ہوتی ہے۔ سبق پڑھ، پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ کی دل و عرض تھی کہ مسلمان ایمان کی تصویر بن جائے اور قرآن کی تصویر بن جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے شاعری میں شاہین کا استعارہ 12 استعمال کیا ہے۔ اقبال اپنے قوم کے جوانوں کو شاہین کی طرح بلند پرواز اور تیز نگاہ دیکھنا چاہتے تھے۔ شاہین خوددار ہوتا ہے، سخت شار ہوتا ہے، غیرت مند، جرأت مند اور وفادار بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ پرندوں کی دنیا کا درے شوم ہے کہ شاہین بناتا نہیں آشیا۔ علامہ اقبال ایک آفاقی شاعر، یونیورسل شاعر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں آج تک عام و خاص ان کے فلسفے سے متاثر ہو کر قوم و ملت کی ترقی کے لیے گامزن ہے، اور یہ ان کی شاعری اور فلسفے کا آج کے دور میں وہی اہمیت ہونے کا جاگتا ثبوت ہے۔ وطن عزیز میں اقبال کی شاعری کو تمام مذاہب اور پس منظر کے لوگ بڑے پیمانے پر پڑھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کی حب الوطنی اور متاثر نظمیں جیسے سارے جہاں سے اچھا، جسے ہندوستان کے قومی گیتوں میں سمجھا جاتا ہے، ان کی شاعری اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور مختلف ثقافتی اور ادبی تقریبات میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کے فلسفے اور نظریات کا مطالعہ اور تبادلہ خیال اسکالرز اور دانشوروں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو کے بارے میں علامہ اقبال کے لیکچرز کو اسلامی جدیدیت میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی تعلیمات اور نظریات سے سیکھنا جو خود انحصاری، عزت نفس، خود کو بہتر بنانے میں زور دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس خواب نے پالا، تیرا گوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ تمدن آخری اللہ میں آئی جہاں داری، وہ سرائے عرب یاری شدر بانوں کا گہوارا۔ تمدن آخری اللہ میں آئی جہاں داری، وہ سرائے عرب یاری شدر بانوں کا گہوارا، وہ سرائے عرب یاری شدر بانوں کا گہوارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس خواب نے پالا، یا گوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ سمال فخر بغلی کارواں شام عمارت میں، فاغرم غارت چہاجت روی زیبارا، فاغرم غارت چہاجت روی زیبارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس خواب نے پالا، تیرا گوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ غرض میں کیا کروں تجھ سے کہ وہ سیران
नसीहत जागीरो जादारो जहाँ बनो जहारा गरज में क्या कहूँ तुझसे क्यों सेरा नसीहत जागीरो जादारो जहाँ बनो जहारा जागीरो जादारो जहाँ बनो जहारा कभी ऐना जहाँ मुस्लिम तदाबर भी किया तूने वो कागर था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला फिर आगोशे मोहब्बत में उछल डाला था जिसने पाँव में ताजे से तारा कभी ऐना जवान मुस्लिम तदाबर भी किया तूने वो कागर था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा तुझे उस कौम ने पाला तेरा रोशे मोहब्बत में उछल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। की जिंदगी चाहते हो तो आपस में इत्तेहाद पैदा करो। इसी कौल के साथ मैं रिहान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अगली तकरीर मेहमान खुसूसी की होगी। इज़हार ख्याल के अंदर हम सब जानते हैं कि अदब की बड़ी अहमियत है कि आप जो है खुश उसलूबी के साथ अपनी गुफ्तगू पेश करें, अपनी गुफ्तगू तहरीर में लाएं या फिर शेर के अंदाज में अपनी गुफ्तगू पेश करें। तो ये जो शेर वही है, मैंने शुरू में कहा था कि आपके सामने पेश किया सूरह शुरा की आखिर है। इसमें अल्लाह ने कहा कि वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, कि शोरा जो है आमतौर पर जो शोरा पाए जाते हैं उनके पीछे बहके हुए लोग चलते हैं। यानी ये जो आमतौर पर जो यानी नापसंदीदा शोरा या आम किस्म के शोरा इनका कोई मकसद नहीं होता है, ऐसे शोरा का अल्लाह ने तौर कराया कि इनके पीछे जो लोग चलते हैं वो बहके हुए लोग, यानी उनकी जो कंपनी होती है वो भवाखार कंपनी नहीं होती, बहुत ही जो है बेवफा लोग और फिर इस तरह जो है बहके हुए लोग उनके पीछे चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, अल्लाह ने कहा कि ये जो बेमकसद शायरी करने वाले लोग हैं वो हर वादी में भटकते हैं, कोई उनका मकसद कोई फोकस नहीं होता है। वअन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, और फिर उनका एक जुर्म ये भी बयान किया गया कि वो कहते कुछ नहीं करते कुछ नहीं, कौल और अमल का तज़ाद उनके अंदर पाया जाता है। ये तो हुआ आम शोरा का तारुफ। अल्लाह ने कहा कि ये जो आम किस्म के शोरा इस तरह के, लेकिन इनके मुकाबले में जो अहले ईमान शोरा है ये अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ बयान की। इन्नल्लज़ीना आमनू, इस तारुफ से हटकर जो अहले ईमान है, ये जो तारुफ है इससे मुस्तस्ना है अहले ईमान। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और अहले ईमान जो शोरा है मोमिन शोरा वो बाअमल होते हैं, अमल सालेह का मुज़ाहरा करते हैं, उनकी जिंदगी में कौल और अमल का तज़ाद नहीं होता है। कहा गया कि अमिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमल सालेह इनका जो है वो लाज़मी हिस्सा है। और फिर उसके बाद एक खुसूसियत बयान की गई कि वो अल्लाह को कसरत से याद करने वाले, ज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले। तो जो शायर जो आदमी अल्लाह को हमेशा याद रखेगा उसकी ज़बान से उसके क़लम से हक़ के सिवा कोई बात नहीं कर सकता, बामक़सद शायरी वो करेगा, अल्लाह को हमेशा याद रखकर अल्लाह की रहनुमाई में अपनी गुफ्तगू करेगा। और फिर वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, एक और खूबी बयान की गई कि वो ज़ुल्म क्या का मुकाबला करते हैं, अगर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं, मुज़ाहिमत करते हैं और फिर हक़ के लिए वो खड़े होते हैं। तो ये बयान चार खूबियां मोमिन शोरा की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शेर गोई की हिम्मत अफजाई करते थे। आपके महफिल में जो सहाबा इकराम थे उसमें कुछ शोरा भी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिम्मत अफजाई भी की, मुख्तलिफ मौक़ों पर उनको एनकरेज किया कि आप शेर कहें। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शेर गोई नहीं सिखाई, कहा है कि वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबग़ी लहु, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया है, आपके लिए मुनासिब नहीं था। मुनासिब क्यों नहीं था? इसलिए कि कुरान नाज़िल हो रहा था, कुरान के नुज़ूल के वक्त अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर होते तो
तो लोग आसानी से कहते हैं कि ये जो कुछ कलाम पेश कर रहे हैं क्या की शायरी है। अल्लाह ताला ने इसकी हिकमत के तहत हालांकि जो को शायरी से मुस्तस्ना रखा, लेकिन नबी वसल्लम ने शेर को पसंद किया और आपने कहा कि नबी शेर का हिकमा, शेर जो है में शेर में हिकमत हुआ करती है, बाल अशार जो है वो हिकमत पर मबनी होते हैं। एक बड़ी जो है एक मुफस्सल तफसीर के बदले में एक शेर आप पेश करते हैं तो पूरा जो है मुद्दा वाज़ेह हो जाता है। तो शेर की बड़ी अहमियत इस्लाम में जो है आती है, उसमें बिलखुसूस इस्लामी शायर अल्लामा इकबाल को हम न सिर्फ इस्लामी शायर कहेंगे बल्कि आपको हम इल्हामी शायर भी कह सकते हैं। आपकी जो शायरी है वो इल्हामी शायर है, उसका एतराफ़ खुद अल्लामा इकबाल ने किया है। और उनके जो हमअसर एक शायर थे ग्रामी जानकारी साहब, उन्होंने अपना तासुर पेश किया कि अल्लामा इकबाल पैगंबर नहीं थे, लेकिन उनकी जो शायरी है वो पैगंबरी के खिलाफ, यानी उनका जो पैगाम है वो कुरानी इशारात पर मबनी और पैगंबरी के जो जवाब करीब होते हैं, जो गुफ्तगू होती है, उसी अंदाज से अल्लामा इकबाल की शायरी की है। ये गोया अल्लामा इकबाल के उस शेर की असर को बयान करने के लिए काफी है। एक मौके पर लाहौर की एक फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज है, उसमें एक जलसा हो रहा था, सालाना जलसा। तो उसके जो प्रिंसिपल थे उनका नाम है डॉक्टर लूकस। इन्होंने एक मौके पर अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि आप ये बताएं कि कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो टेक्स्ट है, ये जो इबारत है, ये इबारत ही नाज़िल हुआ है कुरान मजीद या फिर उसका मज़मून नाज़िल हुआ है? तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि इबारत उतरी, जो टेक्स्ट है असल मतलब वही उतरा है। उसने ताज्जुब किया कि आप जैसे पढ़े लिखे जो है दानिशवर में मानते हैं, इस पर यकीन आप करते हैं, ताज्जुब। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे न सिर्फ यकीन है, यकीन बल्कि मेरा तजुर्बा है। यकीन से बढ़कर अल्लामा इकबाल ने कहा कि मेरा तजुर्बा है। क्या तजुर्बा है? मुझ पर शेर पूरा उतरता है। जब मुझ पर शेर पूरा उतर सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा मदद भी नहीं उतर सकता, पूरी इबारत भी नहीं उतर सकती। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि अल्लामा इकबाल के कलाम के अंदर वो इल्हामी जो है एक खुबत पाई जाती है। आप देखते होंगे कि अशार के अंदर जो रवानी और फिर जो तासीर है वो है बावरी, अल्लाह ताला की तरफ से खास जो है अल्लाह का फजल है। ये इब्तिदाई गुफ्तगू में आपके सामने इस मौजूद के हवाले से पेश की है। अल्लामा इकबाल और कुरान मजीद, इस पर हम जब गुफ्तगू करते हैं तो अल्लामा इकबाल का कुरान से कैसा ताल्लुक था, इस पर अल्लामा इकबाल के जो सवाल लिखे गए उसमें ये बात आप मुकर्रर देखेंगे, मुख्तलिफ किताबों में देखेंगे कि बचपन ही से अल्लामा इकबाल जो है वो कुरान मजीद की तिलावत के आदी थे और बाबा से बुलंद तिलावत के आदी थे। तो गोया जो एक बड़ी अहम खूबी अल्लामा इकबाल की है कि कुरान मजीद से उनका जो शगफ था वो तसल्सल के साथ, इस्तेहलाल के साथ अल्लामा इकबाल जो है कुरान मजीद की तिलावत करते थे। आपकी तिलावत के बारे में एक अपडेट ये भी है कि आप बड़ी रिखत के साथ, बड़ी जो है हुजूर सल्ली के साथ और बड़े जो है यानी कोई इकबाल मूवमेंट के साथ कुरान की तिलावत करते थे। और आगे के बरानी में जो बात आती है कि आपकी तिलावत के वक्त आप जो है अश्बार भी हो जाते हैं, आपकी आंखें अश्बार हो जाती हैं, यानी आप जो है गिड़गिड़ाते हुए तिलावत करते हैं और फिर आप जो है आपकी आंखों से आंसू डाले हुए आते हैं। कुरान मजीद के अंदर बात आई है वैसा सलीम मामूल से लेकर रसूली तरा तफीर मिन तबईन माअरफु मिन हक। पहले किताब में से जो अच्छे लोग हैं वो जब अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। क्यों? कि माअरफु मिन हक, हक को पहचानने के नतीजे में। तो वह अल्लाह इकबाल की तिलावत, बेशक आमिज़ तिलावत और आपकी तिलावत के बारे में बात यह है कि आप जब तिलावत करते हैं तो आपके आंसू से आपका गुस्सा जो है वो तर हो जाता है और फिर उसको धूप में जो सुखाने का कर दिया जाता। और ये किताबों में बात लिखी है कि आपका वो खास प्रोग्राम था, वो इस्लामिया कॉलेज लाहौर के कुतुब खाने में महफूज। तो वह ये अल्लामा इकबाल के कुरान से रोजाना का जो ताल्लुक था ये जाहिर करने के लिए काफी है। एक मौके पर अल्लामा इकबाल के जो वालिद थे उन्होंने जो है उनकी तिलावत के दौरान एक मौके पर कहा कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, मैं एक जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल ने इस्तेफसार किया कि क्या बात कहना चाहते हैं, तो उसको जो है मुतवी किया। फिर एक मौके पर उनके वालिद ने कहा कि तुम जब कुरान पढ़ो
तो कुरान ऐसे पढ़ना चाहिए कि गोया कुरान आप पर नाजिल हो रहा है। ये समझो कि कुरान आपसे हम कलाम है, अल्लाह आपसे कलाम कर रहा है। ये कैफियत होगी तो आप देखोगे कुरान की जो है तिलावत की हलावत आपको महसूस होगी। तो इसका बड़ा असर अल्लाह इकबाल को होता है कि कुरान की तिलावत ऐसी की जाए जैसे हम पर कुरान नाजिल हो रहा हो। और इसी को अल्लाह इकबाल ने बात के मराहिल में एक शेर में कहा कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। यानी आप बड़ी से बड़ी तफसीर भी पढ़ लें, जब तक ये एहसास आपको ना हो कि ये कुरान आपके लिए अल्लाह ने रहनुमाई की, तो इस एहसास के साथ जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप कुरान के रूह से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो ये कुरान के हवाले से अल्लामा इकबाल का जो शरफ था बड़ा जो है मिसाली था। एक मौके पर उनके वालिद ने एक बड़ी अहम बात बयान फरमाई और एक ऐसी बात कह दी कि जिसके नतीजे में पूरी जिंदगी अल्लामा इकबाल की उस वसीयत और फिर उस जो आरज़ू पर वो खाई होगी। वालिद साहब ने जो है खाई कही, वालिद साहब ने कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो कुछ मेहनत की है इसका मुझे वालिदा चाहिए। अल्लामा इकबाल के वालिद ने कहा कि जो कुछ मैंने मेहनत तुम्हारे ऊपर की है तुम्हारी तालीम और तरबियत पर, इसका मुझे वालिदा चाहिए। अल्लामा इकबाल को ताजुब हुआ कि वालिदा क्या हो सकता है, क्या जो है वालिद साहब चाह रहे हैं। तो बड़ी अहम बात ये वालिदैन के बड़ा पैगाम इसके अंदर पाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत का वालिदा ये है कि आप इस्लाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें। अल्लामा इकबाल के वालिद ने कहा कि आप इस्लाम की खिदमत करें, ये जो है मेरा वालिदा है मेरी मेहनत का। तो अल्लामा इकबाल ने इसको अपने जहनों में जो उसको मुस्तहब रखा और पूरी जिंदगी हम देखते हैं हालांकि अल्लामा इकबाल को जो है 60 साल का अरसा ही मिला है, वैसा आया है 60 साल 5 महीने फिर कुछ दिन। तो ये जो अरसा था इसके अंदर अल्लामा इकबाल ने पूरी जो है अपनी फिक्र का खुलासा अपने कलाम के जरिए, अपने खुतबात के जरिए, अपने नसर के जरिए एक बेशुमार जो है एक पैगाम का खजाना जो है अल्लामा इकबाल ने उम्मत के लिए मिलत के लिए छोड़ा। तो ये मौके पर जब उनके वालिद जो है बरअज़ल मौत में मुब्तला थे, यानी वफात के करीब थे, तो उस वक्त अल्लामा इकबाल ने वालिद से मुलाकात की और फिर इत्तलान के लिए पूछा कि जो आरज़ू आपकी थी क्या वो आरज़ू पूरी करने में मैं कामयाब हुआ, क्या मैंने आपका मौइज़ा अदा किया है, क्या उसमें भी कामयाब हुआ। तो उनके वालिद ने गवाही दी कि जाने ना तुमने मेरी मेहनत का मौइज़ा अदा कर दिया है। गोया ये जीते जी उनकी गवाही जो है अल्लामा इकबाल के कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए एक बड़ा जो है एक अहम एक बड़ी जो है एक पहले मरतबा कोई एक मुलाकाती नए मुलाकाती आ गए, उन्होंने अल्लामा इकबाल से पूछा कि आपने मजहब पर, इख्तिसादियात पर, सियासियात पर, तारीख पर, फलसफे पर बहुत कुछ आपने पढ़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें सबसे बुलंद पाया किताब कौन सी ऐसी बहुत हमारी वाला किताब है जो आप हमें पढ़ने की तरफ जो है रेकमेंड करेंगे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए मैं आता हूँ। तो वो गए और फिर वापस जो है आए कुरान मजीद का नुस्खा लेकर, कहा कि ये वो किताब है जो मेरे लिए सबसे बड़ी जो है मुतबर किताब। तो वह आपकी फिक्र की जो बुनियाद है वो कुरान मजीद, कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने सामने रखा। तो ये वह आपके कुरान मजीद के हवाले से एक अहम बात है कि आपकी फिक्र की जो बुनियाद है वो कुरान मजीद। एक मौके पर प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती, इन्होंने भी आपके हम असल थे, इन्होंने अल्लामा इकबाल से सवाल किया कि आप जो फलसफे खुदी पर गुफ्तगू करते हैं, ये फलसफे खुदी का माखज़ क्या है, कहाँ से आपने लिया है फलसफे खुदी। तो अल्लामा इकबाल ने जो है सूरह माइदा की आयत नंबर 105 इसका हवाला किया और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो, ये कुरान मजीद की रहनुमाई है। और फिर कहा कि ला यज़ुरुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम, अगर कोई शख्स गुमराह होता है तो इसका कोई जो है वबाल आप पर नहीं है, आप अगर सही रास्ते पर हैं तो आपके लिए काफी है। और फिर कहा कि इलल्लाहि मर्जिउकुम, तुम्हें जो है इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सब अल्लाह की तरफ लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और तुम्हें तुम्हारे अमल का जो है तुम्हें अमल से बाखबर किया जाएगा। तो ये आयत करीमा का रेफरेंस देकर अल्लामा इकबाल ने कहा ये वो रेफरेंस, ये बुनियाद है जिस पर मैंने फलसफा खुदी को जो है डिवाइस किया, उसको इवाल्व किया है। एक और राय ये है कि सूरह हश्र की आयत है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ
जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया तो अल्लाह ने उनको खुद उनकी जात से उनको फरामोश कर दिया, यानी वो खुद अपने आप से काफिल हो गए। खुदा फरामोशी का जो नतीजा है वो खुद फरामोशी। अल्लाह ताला जो सलाह देता है कि आदमी खुद को भूल जाए, खुद से काफिल हो जाए, यानी खुदा फरामोशी के नतीजे में। तो ये भी वो आयत है जिसकी बुनियाद पर फलसफा खुदी अल्लामा इकबाल ने जो है उसको डिवाइस जो है इवाल्व किया है। अल्लामा इकबाल का बताना कुरान मजीद के हवाले से इतना ज्यादा जो नुमायां था कि जो भी आपसे मिलते वो मुख्तलिफ सवालात कुरान के हवाले से करते, कुरान आयात की तशरीह और फिर कोई और चीज कोई चीज समझ नहीं आई तो अल्लामा इकबाल से पूछते। एक मौके पर किसी ने पूछा कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। इस आयत का खुलासा क्या है, क्या इसमें अल्लाह ताला कहना चाहता है? आयत का तर्जुमा यह है कि जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए हम अपने रास्ते जो है खोल देते हैं, हम रास्तों की रहनुमाई करते हैं। तो यह अल्लाह ताला की जो है बशारत थी। अल्लाह इकबाल ने कहा कि तमाम उलूम व कमालात और मकासिद आलिया जो नौ इंसान के लिए किसी ना किसी जहर से मुफीद हो, इनके हुसूल की सही करना ये जिहाद की सबीलिल्लाह दाखिल। और इस मश्क व मज़ाहिरत के इंतहाई नताइज लनहदियन्नहुम सुबुलना का ज़ुहूर है। वो यह आयात कुरानिया की तशरीह अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ महफिलों में मजलिसों में आपने की है। एक मौके पर मौलाना रूम का एक शेर किसी ने पेश किया और कहा कि इसका खुलासा आप समझाएं, क्या बोलना चाह रहे हैं मौलाना रूम? शेर क्या है? लुत्फ़े आप व लुत्फ़े बाद व लुत्फ़े गिल हस्त महसूस हवा से अहले दिल, हस्त महसूस हवा से अहले दिल। तो ये शेर जो है फारसी का शेर है और पूछा गया अल्लामा इकबाल से कि इसका मफ़हूम क्या है। तो अल्लामा इकबाल ने इस शेर की तर्जुमानी के लिए कुरान मजीद का हवाला दिया और कहा कि इससे अल्लाह ताला जो है दो जगह अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि कायनात की हर चीज वो अल्लाह की तस्बीह बयान करे। वही मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर चीज कायनात की जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, तुम्हें महसूस नहीं होता कि कैसे तस्बीह कर रही है। ये चरिंद परिंद दरख्त जमादात नबातात ये सब जो है अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तुम्हें उसका एहसास नहीं। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, अल्लाह हमने आयतों का हवाला दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का कुरान मजीद से कितना गहरा ताल्लुक था, कितना जो वसी मुताला था। आपके जो है 30 मई 1935 आपने एक खत लिखा, ये खत आला हज़रत नवाब भोपाल को आपने लिखा। उसमें अपनी एक आरज़ू आपने लिखी, आरज़ू ये थी कि चिराग शहर हूँ बुझा चाहता, जिंदगी खत्म होने हो रही है लेकिन मेरी एक तमन्ना है, और तमन्ना क्या है? मरने से पहले कुरान करीम से मुताल्लिक अपने अफकार खलनबल कर जाओ, ये मेरी आरज़ू है। तो वह अल्लामा इकबाल के सामने कुछ खास जो है अफकार थे, खास जो नजरियात थे, जिसको अल्लामा इकबाल जो है तहरीरी शक्ल में वो जो है शायर करना चाह रहे थे। शायद उसका जो है कोई उसका वक़्त नहीं मिला, लेकिन जितना कुछ उन्होंने दिया है मिल्लत को, इसके अंदर वो सारी चीजें शामिल हैं। आपके खुतबात हैं, आपकी नस्ली जो तहरीक़ात हैं और आपकी जो शायरी है, इसके अंदर हम देखते हैं कि आपने कोई कसर उस सिलसिले में नहीं छोड़ी है। अल्लामा इकबाल का अपनी शायरी से मुताल्लिक़ भी एक कॉन्फिडेंस हमारे सामने आता है, और वो ये है कि अल्लामा इकबाल ने इस बात का दावा किया कि मेरी शायरी के अंदर कुरान मजीद के अलावा कोई चीज नहीं है। ये मेरा कॉन्फिडेंस और ये इत्मीनान कि आपका कलाम जो है कुरान की बुनियाद पर जो है वो इरशाद हुआ है। मोहम्मद भी तेरा जिब्रील भी कुरान भी तेरा, मोहम्मद भी जिब्रील भी कुरान भी तेरा, मगर ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है या मेरा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि जो कुछ मैंने कहा है ये मेरी तर्जुमानी है या तेरी तर्जुमानी है, इन्हें दोनों एक ही बात है। मैंने कुछ अपनी तर्जुमानी नहीं की, बल्कि मैंने तेरे कलाम की तर्जुमानी की। अल्लामा इकबाल ये भी कहा कि था ज़ब्त बहुत मुश्किल इस सैल मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर, कलंदर ने असरार किताब जो है लोगों के सामने बयान कर दिए। इन्हें जो कुछ मैंने कहा है वो कुरान मजीद की तशरीह पर मुश्तमिल है। और ये बड़ा दावा अल्लामा इकबाल ने किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कि मेरे कलाम के अंदर अगर कोई चीज बुखरान से हटकर आप देखें तो उसकी जो मुझे सजा दी जाए। सर दिलम आईन है बेजौहर, अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये जो मेरा दिल है, ये जो दिल का आईना है, इसमें अगर कोई जौहर आपको नजर नहीं आता है
वरबा हरफन गैर कुरान मुजमस, कोई एक हर्फ भी कुरान से हटकर के इसके अंदर आपको मिल जाएगा। रोज महशर खार और रसवा कुन मरा, कहा गया कि क़यामत के दिन मुझे रसवा कर दी। और फिर बेनसीब अज़ बोसे बाबुल मरा, कहा गया कि आपके अपने कदम की बोसी से मुझे महरूम कर दी। एक इस्तिआरा है, एक अंदाज़ बयान है कि आप जो है अपनी कदम बोसी से मुझे महरूम कर दीजिए, क़यामत के दिन मुझे रसवा कर दीजिए अगर मेरे कलाम के अंदर कुरान के अलावा कोई चीज़ आपको जो है कोई चीज़ आपको मिले। तो ये बड़ा दावा और ये बड़ा कॉन्फिडेंस अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम के सिलसिले में पेश किया है। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद के बारे में अल्लामा इकबाल का नुक्ते नज़र कुरान के सिलसिले में आपके कलाम में बहुत सारी जो है बहुत सारे इशारे हमें मिलते हैं। कुरान की जो अज़मत है, कुरान की जो अहमियत है, ये अल्लामा इकबाल का जिस अंदाज से जाहिर हुआ वो किसी और शख्सियत पर जो है उस अंदाज से कुरान की अज़मत जाहिर नहीं हुई। ये डॉक्टर असार अहमद साहब का जो है एक इज़हार ख्याल है। कुरान मजीद के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की और उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, उम्मत जो है वो ज़वाल का शिकार है। उम्मत को अल्लाह इकबाल ने याद दिलाया कि आपको अपने असल की तरफ और उस किताब से आपको वाबस्ता होना है। और आपने कहा कि कुरान में हो गज़ब ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको आता चीज़ बताइएगा। कुरान में बड़ी सी चीज़, कुरान में आपको तवज्जो करना चाहिए, इससे आपकी जो है फिक्र और आपका किरदार जो निखरेगा। एक ताज्जुब आपने जाहिर किया कि साहिब कुरान वो बेज़ौक़ तरह आप साहिब कुरान भी हैं और आपके अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। अल अजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब, ताज्जुब की बात कि आप जो है कुरान के मुताबिक अपने आप को बनाने के लिए फिक्रमंद नहीं है। और ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन खाली नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है, कैसे हैं आपके अखलाक? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि काना खुलुकुहुल कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो तो सारा कुरान है। कुरान में जो अखलाक बयान हुए हैं उसकी अमली तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो इसी पर अल्लाह ने कहा कि मोमिन की भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए कि आप नजर आने के लिए खाली हैं, लेकिन आपको खुद कुरान बनना है। तो ये पैगाम उम्मत को अल्लामा इकबाल ने कुरान के हवाले से पेश किया है। मेरी गुफ्तगू का जो है चौथा जो पहलू है वो है कुरानी फिक्रे जो अल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल किए, कुरानी आयात के टुकड़े अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में इस्तेमाल किए। उसकी कुछ मिसालें मैं आपको रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा कि आप बताओ तुझको रमज़े आए इन्नल मुलूक, एक आयत है इन्नल मुलूक से उस आयत का आगाज होता है। अल्लाह इकबाल ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ उस आयत का खुलासा क्या है। आप बताओ तुझको रमज़े आए इन्नल मुलूक, सल्तनत अखवान गालिब, ये है एक जादूगरी जो गालिब कौमें होती हैं उनकी जादूगरी है। उस आयत करीमा का मुताला करने अल्लाह इकबाल ने हमें इशारा दिया। क्या है आयत? ये आयत जो है सूरह नमल की आयत है। सूरह नमल में अल्लाह ने कहा कि आलत, ये मलिक सभा का जुमला है कि इन्नल मुलूक, ये जो बादशाह हैं, इज़ा दखलू क़रया, ये मुख्तलिफ मुल्कों के जो रहनुमा हैं वो जब इन्वेट करते हैं, खरियों में दाखिल होते हैं, किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, तो कहा कि अस्सलूहा, उसमें फसाद मचाते हैं। वजालू आइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, वहाँ के जो है बारखान शहरियों को वो जंगल खार करते थे। आज हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं फलस्तीन के हवाले से। ये फलस्तीन के बारखान शहरियों को किस तरह जो इजराइली रवायों के जरिए उनके फसाद के नतीजे में कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वजह इंपीरियलिज्म का जो असर होता है उसको इस आयत करीमा में अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह ने उस आयत का हिस्सा हवाला देते हुए कहा कि आप बताओ तुझको रमज़े आए इन्नल मुलूक, सल्तनत अखवाम गालिब की है एक जादूगरी। तो वह गालिब कौमों का जो फसाद होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। अब सलूना वजाना आइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून, इसी तरह के काम करते हैं। अल्लाह ताला को छोड़ने वाला नहीं है, उनको जो है सदा देने वाला है। एक शेर में अल्लाह ने कहा कि ऐ मुसलमान हर घड़ी पेशे नजर, ऐ मुसलमान हर घड़ी पेशे नजर, आए ला युखलिफुल मियाद, आए ला युखलिफुल मियाद। ला युखलिफुल मियाद कुरान के अंदर दो मरतबा आया है। हत्ता यातिया वादुल्लाह, यहाँ तक अल्लाह का वादा आ जाए। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला का जो वादा है, अल्लाह वादा खिलाफ करने वाला नहीं, वादा खिलाफ करने वाला नहीं। जो अल्लाह का वादा है वो मुकम्मल होने वाला है, पूरा करने वाला है।
रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, तू जरूर जो है लोगों को जमा करेगा क़यामत के दिन, तू अपने वादों की खिलाफ वर्जी करने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला के इस फरमान को अल्लाह ध्यान दिलाते हैं। एक और जगह आपने कहा कि ये लिसानुल अस्र का पैगाम है, ये जमाने का एक पैगाम है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, याद रख। उसी तरह का एक ये शेर है, इसमें अल्लाह के वादे का हवाला रहमान ने दिया। और वादा क्या है कि ये इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ये कुरान करीम के अंदर 8 मरतबा आया है। फस्बिर, सब्र कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है, सच करने वाला है। वला यस्तखिफन्नका लज़ीना ला युक़ीनून, ये जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं, इस्लाम के जो है खिलाफ काम करते हैं, ये हरगिज़ आपको हल्का ना महसूस करें, आपको जो है वो कमजोर महसूस ना करें। तो मेरा इस सूरह के अंदर सूरह रूम की आखिरी आयत है, इसके दरमियान में अल्लाह ने जो वो वादा किया है, वादा क्या किया है कि अल्लाह ताला मुजरिमों को छोड़ने वाला नहीं, मुजरिमों से इंतकाम लेने वाला है। और दूसरा वादा अल्लाह ने किया कि वकज़ालिका हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि मुसलमानों की हिमायत, अहले ईमान की हिमायत करना और उनकी मदद करना ये हमारे ऊपर हक है। तो इस वादे को अल्लाह ताला जो पूरा करेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि ये लिसानुल अस्र का पैगाम है, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, इसको याद रखने की जरूरत है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों की तर्जुमानी अल्लाह ताला ने की, मुख्तलिफ आयतों का खुलासा कुछ हिस्सा लेकर आपके सामने पेश करता हूं। एक तो तलमीहात, जो इंसानी तारीख है उसके हवाले से अंबिया अलैहिस्सलाम का तारुफ है, कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूं। एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम सब जानते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उनके जो है पेट से क़यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले हैं उन सब के अरवाह को जमा किया। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा ग़ाफ़िलीन। इसको अहले अलस्त कहते हैं कि क्या में तुम्हारा रब नहीं है। ये अल्लाह ने सवाल किया तमाम इंसानों से, तमाम इंसानों की अरवाह से। तो तमाम इंसानों की अरवाह से उन्होंने कहा कि भला क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। ये जो अहले अलस्त है इसके हवाले से अल्लाह ताला ने कहा कि बुलाया हिस्से पैमाने अव्वलीन मैंने, ये जो पैमाने अव्वलीन है, बुलाया हिस्से पैमाने अव्वलीन मैंने, सुने कोई मेरी गुर्बत की दास्तान मुझसे। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से और फिर सारी इंसानियत की रूहों की जो गवाही थी उसका हवाला किया। मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कहा कि कभी मैं ज़ौक़ तकल्लुम में दूर पर पहुंचा, गुफ्तगू के शौक में मैं दूर पर पहुंच गया, छुपाया नूर अज़ल ज़ेर आस्तीन में, एक रोशनी को मैंने अपने आस्तीन की जो है ज़ेर उसके नीचे मैंने छुपाया। दो मिसरे, एक शेर है, दो मिसरे हैं, दो मिसरों में दो अलग अलग आयतों की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है। वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, फिर अल्लाह ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने भरपूर बात की। तो ज़ौक़ तकल्लुम। और फिर दूसरे मिसरे में जो बात आई कि वो एक रोशनी, यदि पैदा कहते हैं कि बगल में हाथ डालकर आप निकालते तो हाथ के अंदर जो है वो उजाला होता, रोशनी होती, उसका हवाला कुरान मजीद के अंदर जगह जगह आया है। सेल्फ जो है डेवलपमेंट, ये पैगाम जो आपको खुद ही के हवाले से मिलता है। अल्लाह ताला ने उस आयत का हवाला दिया है कि अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो अनफुसकुम का है को कहा बचाओ अपने आप को, पहले अपने आप को बचाना है फिर घर वालों को बचाना है। एक अहम फलसफा अल्लाह ताला ने रूह के सिलसिले में पेश किया है कि इस तय करे खाकी में एक शय है जो वो तेरी, हमारे इस वजूद के अंदर एक शय है वो अल्लाह की जानिब से, मेरे लिए मुश्किल है इस शय की निगहबानी। ये जो रूह है ये अल्लाह की जानिब से इल्हाम हुआ है। ये जिस्म हमारे पास है लेकिन अंदर एक रूह है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो अल्लाह ने कहा कि फैज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को ठीक ठाक बना दूं और मेरी जानिब से रूह उसके अंदर इल्क़ा करूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, तुम जो है सजदे में गिर जाओ, फरिश्तों से अल्लाह ने कहा। तो गया आदम अलैहिस्सलाम को बनाते हुए अल्लाह ने कहा कि व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मेरी रूह उसके अंदर इल्क़ा करूं। अल्लाह ने उसी की इशारा किया कि इस मैं करे खाकी, इस मादी वजूद के अंदर ये एक शय है जो वो तेरी तरफ से मिली हुई शय है।
میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اس کی حفاظت اور اس کا جو ہے دھیان رکھنا، اس کی ترقی کی کوشش کرنا، اس کی کامیابی کی فکر کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخری ایک شعر رکھ کر اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ یہ بھی جو ہے قرآن آیت کی ترجمانی ہے۔ پرسش اعمال سے مقصد تھا رسوائی میری، یہ جو حساب و کتاب ہے اس کا مقصد جو ہے میری رسوائی ہے، ورنہ ظاہر تھا سبھی کچھ کیا ہوا کیوں کر ہوا، کہ جو کچھ حساب لیا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں ہمیں اندازہ ہے، ہماری زندگی ہمارے اوپر واضح ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اقبال نے قرآن کی ایک آیت کا جو ہے اصل میں خلاصہ پیش کیا ہے۔ کیا ہے آیت؟ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا جو اس کا اعمال نامہ ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ہمیں کتاب اس کے سامنے پیش کریں گے، اعمال نامہ، اقرأ کتابک، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنی کتاب پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود کافی ہو اپنا حساب لینے کے لیے۔ تو وہ انسان اپنے آپ پر جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو وہ کہے گا آپ کے سامنے علامہ اقبال کے مختلف آپ کے پیغام کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے ساتھ رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ قرآن مجید سے علامہ اقبال کا تعلق کیا تھا، کیسا مثال تعلق علامہ اقبال نے قائم کیا، امت کو آپ نے کیا پیغام دیا قرآن کے حوالے سے، کہ امت کی کامیابی جو ہے قرآن سے وابستہ ہے۔ پھر آپ کی قرآن کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید کے مختلف آیتوں کے حصے لے کر علامہ اقبال نے ہم سب کی جو ہے نصیحت کا سامان کیا ہے، اور بہت سارے اشعار عظیم آپ جو ہے دیکھیں گے قرآنیات پر علامہ اقبال کا جو پیغام ہے اس کی کتابیں پہ آپ کو الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تو اس بات پر میں کوشش کی ہے کہ کچھ اہم نکات آپ کے سامنے اس موضوع پر رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اقبال کے اس قرآنی پیغام کو لے کر ہم جو ہے جنت کے اندر بھی اور خود کو انسانیت کے اندر بھی اصلاح کا اور پھر اس بڑے فریضے کا ہم جو ہے کام انجام دیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خیر وقت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا فہم نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ موصوف کا شکریہ اس قول سے ادا کرنا چاہوں گا، ضبط نفس افراد میں ہو تو اس سے خاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے، ضبط نفس افراد میں ہو تو اس سے خاندانوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور اگر اقوام میں ہو تو سلطنتیں قائم ہوتی ہیں۔ میں اب صدارت کی خطاب کے لیے ادارے کے صدر جناب عابد اللہ اطہر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ یقین محکم عمل بہرحم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل بہرحم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آج کی محفل میں یوم اقبال کے نام سے جو تقریری موضوع ہمارے مہمان جناب لطیف اللہ منصوری کو دیا گیا تھا وہ علامہ اقبال اور قرآن۔ حضرت یہ تحقیق موضوع ہے جس پر ایک ادب اور عالمانہ مزاج سے میل کھاتی شخصیت سے ممکن ہے اس پر بات کرنا۔ ادبی موضوع پر ماہرین حضرات جو ہے ادب کے وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن کے حوالے علامہ اقبال کے اشعار کو دے کر بات کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کے مہمان نے بہت سارے اشعار کو آیتوں کے حوالے سے مثالیں دے دے کر بیان کیا ہے، مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک پہلو ہے علامہ اقبال کی شاعری کا۔ اردو ادب میں علامہ اقبال ہی وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے قرآن کو سامنے رکھ کر شاعری کی۔ آپ کو تعجب ہوگا تقریباً 44 اشعار علامہ اقبال کے کلام میں ہیں، اردو کلام میں فارسی کے علاوہ، جن میں آیتوں کے حصے کو شعر سے جوڑا گیا۔ یہ بڑا فن ہے، شعر ایک وزن میں ہوتا ہے، پہلے مصرے میں 2-4 الفاظ جو ہے آیت کے ہوں اور بعد میں اسی وزن سے پورا شعر ہو، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 اشعار کے حوالہ دوں گا، آپ بہت سارے اشعار ہمارے مہمان نے پیش کیے ہیں، واقعی مختصر موضوع رہا، بڑا اچھا فرمایا آپ نے، اچھا مواد پیش کیا ہے، بہت ممنون ہوں۔
उर्दू अदब में अल्लामा इकबाल से पहले भी ऐसी रिवायत नहीं थी, और अल्लामा इकबाल के बाद भी आज तक शायरी को कुरान से जोड़ने वाला कोई शायर पैदा नहीं। ये जो है अल्लामा इकबाल की खुसूसियत है। कैसे कैसे अशआर, एक वहां पर आपने फरमाया है खानकाह का जिक्र करते हैं, खानकाह का जिक्र करते हुए आपने फरमाया है तुम भी इज़्निल्लाह कहते थे जो रुखसत हुए। देखिए तुम भी इज़्निल्लाह जो है ये इस्तिलाह कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आई है। आयत में कुछ हमें हवाला नहीं दे सक रहा, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूदा दिया था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे। जिंदा करते वक्त क्या कहते थे, मेरे मुंह से जिंदा होता नहीं कहते थे वो तुम खड़े हो जा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। तो मुर्दा उठकर खड़ा होता था, ये आपका मौजूदा था उस जमाने में। तो अल्लामा इकबाल ने उस आयत के उन अल्फाज को लेकर किस तरह से शेर कहा है, तुम भी इज़्निल्लाह कहते थे जो रुखसत हुए, खानकाह में मुजावर रह गए या गोद। ये खानकाही निजाम जो है मुजावरत से चल रहा था। उसमें खानकाह में पहले क्या होता था, दीन की तरबियत होती थी, दीन को समझाया जाता था, मोमिन को बंदे मोमिन बनाया जाता था खानकाह में। आज खानकाही निजाम ऐसा नहीं है। आज क्या है, वो मुजावर नहीं रहे। आज पहले 70 साल पहले इकबाल के जमाने में जिंदगी में जो पहले थे वो नहीं रहे। हालांकि इकबाल ने 100 साल पहले की बात कही है, वो 100 साल से पहले भी जो माहौल था खानकाह का वो 100 साल से दूर नहीं रहा। क्या मुजावर रहे गोद के खबर पड़ने वाले को, ये जो खानकाहों पर आज बसरा बनाकर बैठे हुए हैं, ये मुजावर नहीं है, दरअसल कौम की खबर खोद रहे हैं। ये कौम को गोद कर रहे हैं, जिंदा कौम को गाड़ रहे हैं। उनकी बदअमालियों से, उनके बेज़मीनी से, उनके बदअखलाक़ी से, उनके तो नए तरीकों से, उनकी जिद्दत तराजी से, उनकी जिद्दत तराजी से ये कौम की खबरें खोद रहे हैं। कौन कहा है, आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा खानकाह में मुजावर रखे या गोद। तो कौम की खबर खोजने वालों से तशबीह किस है, उन मुजावरों को। ये मुजावर नहीं रहे, मुजावर का बड़ा मकाम है, ये मुजावर नहीं रहे बल्कि ये खबर खोजने वाले रहे कौम के लिए। ऐसा मफहूम बयान करने वाला शायर ये अल्लामा इकबाल के सिवा उर्दू अदब में कोई नहीं। और शेर तो आसान है, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जी ला इलाहा पढ़कर मुसलमान हो जा रहे हैं, मुसलमान है हम सब, कलमा गो है, हम कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे दिलों में कलमे की तासीर कितनी है। हम दिलों कलमे को दिल में बसा करने के बजाय ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े शान से लगा देते हैं कहाँ दीवारों पर। हमारा कलमा दिलों में नहीं है, दीवारों पर है। कलमा हमारा कहाँ है, दीवारों पर, दिलों में वो तासीर से नहीं है। तो जिक्र ने कह भी दिया ला इलाहा, हमारी अकल ये कह रही है ज़बान से कि मैं मुसलमान हूँ, दिलों निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे बहुत सारे अशआर अल्लामा इकबाल के कलाम में है। इनका यह था ये आधे घंटे पौने घंटे की तकरीर करना नामुमकिन है। बहरहाल हमारे पास जो योग इकबाल से जो आज की जो तकरीब हम मना रहे हैं, हम तलबा में बेदारी लाना चाहते हैं। और बेदार जो नौजवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, ताकि अपना मुस्तकबिल बहुत ही रोशन देखें। हम तलबा को टारगेट करके ये तकरीब मुनक़्क़िद करने की काबिलियत को भी दावत नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो बदौलत नहीं थी कि हम लोग आसानी से हम जो दूर होने वाले नहीं है। हम कोशिश करते रहे, तलबा को तरफ लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कौम में जो गफलत वो गफलत इतनी आसानी से दूर नहीं है।
जिस पर न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी। हमारे अंदर इनकलाबी शान होनी है। जब तक इनकलाबी शान नहीं लेते हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, कौमों में तब्दीली नहीं आती, कोई किसी उम्मत में तब्दीली नहीं आती। इनकलाबी शान जरूरी है। वो इनकलाबी शान जो है वो क्या है, वो गजा और फलस्तीन की सरजमीन पर नजर आ रही थी। वो इनकलाबी शान चाहिए जिस पर ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात, कश्मकशे इनकलाब। उमम कहते हैं उम्मतों को, उम्मतों की जो जिंदगी है, उम्मतों की जो असल रूह है, वो आदमी को कश्मकश में रहना है। मुझे सुबह उठ के दोपहर तक क्या करना है, दोपहर से शाम तक क्या करना है, फिर तक क्या करना है, मुझे कौम के लिए क्या करना है, मुझे खानदान के लिए क्या करना है, अपने हजूर के लिए क्या करना है, अदब के लिए क्या करना है, जबान के लिए क्या करना है, मजहब के लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मरने तक क्या क्या करना। ये कश्मकश होनी चाहिए। ये कश्मकश वो जो है वो हम पनपते हैं, हमारा नाम रोशन रहता है। वरना क्या कहे साहब, क्या नुमायां कर गए, बीए की लड़की की पेंशन मिली और मर गए, जिंदगी बस खराब हो जाती है। क्या नहीं, बड़े नौकरी हासिल किए, फिर पेंशन मिली और राष्ट्र से बात में गुजारे, फिर जो है मर गए। कौन दिया किस तरह से हमारा किसी को पता नहीं चला। ऐसी जिंदगी जीने से कुछ भी फायदा नहीं है। अल्लाह महफूज है, एक कश्मकश की जिंदगी चाहते हैं। कौन के अंदर, मोमिनों के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक कश्मकश की जिंदगी चाहते हैं जिस पर इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उम्मत की हयात, कश्मकश के इनकलाब। बहरहाल हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, हमने पहले बात करके हमारा पिता है वक्त खत्म हो रहा है। बहुत से बातें जो है आपने हमारे वो बातें जो हमारे रहते और शांति है। अलबत्ता जब तक हम कलाम इकबाल का इन फुर्सत के अवकाश में इंतहाई क्या है वो इत्मीनान क़ल्ब के साथ मुताबिक नहीं करते, हम इन बातों से वाकिफ नहीं होते। मुझे खुशी होती है इस महफिल में ऐसे भी अफराद हैं जो उर्दू नहीं पढ़े लेकिन कलाम अल्फाज से बड़ा शगफ रखते हैं। नाम लेना नहीं चाहता, तो कलाम अल्फाज से बड़ा शगफ रखता है ऐसे अफराद इस महफिल में। और मैं समझता हूँ वो मुसलमान ही क्या जो कलाम अल्फाज से रकम न रखे। जिस तरह से हमारा कुरान से ताल्लुक होना है, कुरान से जिसे हम रकबत होनी है, कलाम अल्फाज से भी रकबत हो, तो हमारे मिजाज में बड़ी तब्दीली आती है। पहले के उलमा जो है अपने किताब में हमेशा अल्लामा इकबाल के अशआर से किताब करते थे, या किताब के खाते में तो अल्लामा इकबाल ने शेयर करते थे, या दरबार में हवाले में तो अल्लामा इकबाल ने शेयर करते थे। आज उलमा में वो बात नहीं है। आज कितने उलमा कितने अशआर सुनाते हैं, नहीं कोई भी नहीं, बहुत कम। तो बहरहाल मिजाज बहुत बदल गया है जमाने का, समाज का। आज मुझे हालात बदलने की जरूरत है, हमें कुरान से करीब होने की जरूरत है, और वो अदब वो लिटरेचर जो कुरान से करीब है उस लिटरेचर से करीब होने की जरूरत है। ये पैगाम जो है हम यौम इकबाल के दिन जो है समाज को देना चाहिए। यौम इकबाल के हिस्से जो है हमें पैगाम बयान देना चाहिए। आपके अंदर उर्दू मोहब्बत हो, उर्दू अदब की मोहब्बत हो, उर्दू शायरी की मोहब्बत हो, और फिर ऐसे वो शुरा जिन्होंने अखलाक की सुधार का जो अदब पेश किया है, अखलाक की सुधार की जो शायरी पेश की है, उस शायरी को सुनो, पढ़ो, और फिर जो है उसे जो है अपने दिलों में सिर में बसा लो। ये हमारी जिंदगी के लिए कुरान की तरह रहनी है। जिस तरह से कुरान हमारी रहनुमाई फरमाता करता है, ऐसा ये अदब, ये शायरी, ये अशआर हमारी रहनुमाई करते हैं। बहरहाल इन चंद कलिमात के साथ जो है मैं आप तमाम जो है ये वक्त आराम का है, हम कौम बहुत आराम कर चुकी है, अब हमें मजीद आराम की जरूरत में बेदारी चाहिए। ये जो हमारा आराम का जवाब है, हमें आप लोग अपने आराम के वक्त को आराम को टच करके इस महफिल में आके महफिल की जो रौनक बढ़ाएंगे, मैं आपसे अल्लाह ताला को बार-बार दुआ दूं कि अल्लाह ताला आपको हर तरह के आफत से बचाकर आपकी जिंदगी को पूर्ण बनाए और रोशन करे, और आपका शगफ
अदब से जबान से जिस तरह से होता है वैसा उर्दू जबान में अदब से हो जाए, ये मेरी जो है तासर है आपके। दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादे पारा के हर जर्रे चमका दे, हर जर्रे को चमका दे। फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। बैठे हुए आँखों को फिर सूए अरब ले चल, फिर सूए अरब ले चल। इस शहर का होकर को फिर वसत सारा दे। तुझे उस कौम ने पाला है और शेर मोहब्बत में तुझे डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूँ था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है और शेर मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे तारा। सबब फिर बड़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबब फिर बड़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। खुदाए नज़र का दर्द कुदरत तो ज़बानों है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमानों है। खुदाए नज़र का दर्द कुदरत तो ज़बानों है, यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमानों है। यकीन पैदा करे गाफिल के मग़लूबे गुमानों है। सबब फिर बड़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। परे है खलीफा से मंजिल मुसलमान की, परे है खलीफा से मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसकी गिरते राहों का कारवां तू है, सितारे जिसकी गिरते राहों का कारवां तू है। सबब फिर बड़े सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
बनता है मुसलमान, ये चार अनासे हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। खाली नजर आता है हकीकत में कुरान, खाली नजर आता है हकीकत में कुरान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, जिससे जिगर लाल ठंडक हो शबनम, जिससे जिगर लाल में ठंडक हो शबनम। दरियाओं के दिल जिससे बह जाए वो तूफान, दरियाओं के दिल जिससे बह जाए वो तूफान। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई यान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन। मुझको कुदरत ने सिखाया है तरफ़शा होना, मुझको कुदरत ने सिखाया है तरफ़शा होना। नकाए शाहिद रहमत का खुदीक़ा होना, गमज़दा-ए दिल अफ़सरदत है होना, गमज़दा-ए दिल अफ़सरदत है होना। रौनक़े बज़्म जवानाना गुलस्ता होना, बुलंदी से फलक बोसाए लश्मन मेरा। अब्रे कौसार गुलबाश है दामन मेरा, बनके किसूर पे हस्ती पे बिखर जाता हूँ। शानाए मौजे सर सर से सवर जाता हूँ, शानाए मौजे सर सर से सवर जाता हूँ। दीदाए उम्मीद को तरसाता हूँ, दिल से दीदाए उम्मीद को तरसाता हूँ। किसी बस्ती से हूँ खामोश गुजर जाता हूँ, है बुलंदी से फलक बोसाए लश्मन मेरा। अबे गुफ्तार गुलबाश है दामन मेरा। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो सितम हो गया वादे बेहिजाबी, कोई बात सब्र आज़मा चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, कि
क्या चाहता हूँ, जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल हो मगर शौक इतना, वही नंतरानी सुना चाहता हूँ, वही नंतरानी सुना चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ।